Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, मलोट। आपका सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एंड टॉपिक इज पैथोफिजियोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जिसमें आ जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इट इज़ ए थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टेरियल वाल का थिक और हार्ड हो जाना। इट इज़ ए characterized by a streak of cholesterol and other lipids in early stage and later by atheromas. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द morphologic lesion which is yellow or white colored that appears on the intima of blood vessels called atheroma. The process starts at the intima. Platelet aggregation, endothelial permeability changes, and fibrin deposition lead to formation of atheroma. Signs and symptoms क्या है? It serves cases. It may cause angina pectoris, myocardial infarctions, ischemic renal tissue, or peripheral vascular disease. Peripheral vascular disease show pain in the legs, which is reduced by the rest. angina pectoris क्या है? पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि angina pectoris is most frequent symptoms of ischemic heart disease and result from a temporary relative imbalance of oxygen demand and supply in the heart. The imbalance is due to the inability to increase coronary blood flow in response to the increased myocardial demand, जिसमें due to atherosclerosis of the large coronary artery. साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि इसके देयर आर substernal decompose which may radiate to neck, lower jaw, shoulder and arms. Sometime the decompose may occur only in the arms or wrist. Congestive cardiac heart failure CCF pathophysiology क्या है कि when the heart pumps blood at an insufficient rate, salt and water are retained by kidney and fluid accumulate in the intestinal space, hence it is termed as CCF. These include pressure overload the heart. Sign and symptoms क्या है कि increase in extracellular plasma volume lead to congestion of pulmonary systemic circulation. Pulmonary congestion cause breathlessness. Patient may be abruptly awaken at the night with a feeling of suffocation. आधी रात को पेशेंट का अपने अंदर सफोकेशन फील करना, घुटन सी महसूस करना, थकावट होनी, वीकनेस होनी. Urine is usually concentrated with a high urine specific gravity and पोटेंशियूरिया. भूख कम लगनी, जी कच्चा होना, जिसके सिम्टम्स हैं. हाइपरटेंशन के क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि हाइपरटेंशन इफेक्ट नॉट ओनली द हार्ट बट पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस में आल्सो अकर इन आइज, किडनी एंड ब्रेन. ब्लाइंड स्पॉट में इंटरफेस विद विजन बिकॉज ऑफ रिटेन्ड हेमरेजेस. जो हाइपरटेंशन का इफेक्ट सिर्फ हार्ट पे नहीं पड़ता है, ये साथ साथ आँखों पे, किडनीज पे और ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है. द डैमेजेस ऑफ किडनी रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर. दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. दिस ultimately result in increased cardiac output. The increase in volume of plasma and extracellular fluid ESF thus ultimately result in increased cardiac output. The peripheral
resistance to blood flow increases, cause increase in blood pressure. Due to increase in cardiac output, the work of heart is increased, causing left ventricular failure. This causes atherosclerosis resulting in hypertension. Sign and symptoms क्या है? Hypertension is usually an asymptomatic disease, although headache, tinnitus, epistaxis is common. Dizziness occurs when systolic blood pressure exceeds 110 mm. एपिलेप्सी की बात करें तो क्या है कि एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन फंक्शन यूजुअली एसोसिएटेड विद ए डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू सडन एंड एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन सेल। तो ये एक दिमागी बीमारी है जिसको मिर्गी भी बोलते हैं। तो ये इसमें क्या है, अचानक जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन सेल के द्वारा, जिससे पेशेंट को सीजर्स आने लगते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? एपिलेप्सी comprises sudden excessive discharge of cerebral neurons in the brain leading of body movement. Any process which damage the gray matter of the brain may result in the activation or inactivation of neurons by unknown mechanism. If the discharges remains localized, it results in patient seizure or which may spread to cause a generalized seizure. The excessive neuronal discharge of entire brain result in loss of consciousness, disturbance in sensation. तो इससे क्या है, सीजर्स आने लगते हैं, दौरे पड़ने लग जाते हैं, जिससे पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में रहता है, उसकी सुध बुध खो जाती है। आफ्टर पीक ऑफ सीजर्स देयर इज डिस्चार्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूरोनल डिस्चार्ज। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की ये टाइप पे डिपेंड करता है उसके साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला है जनरलाइज सीजर, जो कि दो तरह के होते हैं, ग्रैंड माल टाइप। दीज सीजर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें आपको देखने मिलेगा कि एकदम उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाती है, पेशेंट गिर पड़ता है, फॉलिंग टॉनिक एंड देन क्लॉनिक मूवमेंट ऑफ द मसल्स, हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दिस पेशेंट में रिमेन अनकॉन्शियस फॉर एज लॉन्ग एज 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट तक पेशेंट को बेहोश रखता है। ऑन अवेकनिंग द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ हेडेक। जब उसको होश आती है तो वो उसका जो सिर जो है वो दुखने शुरू हो जाता है। सेकंड, पेटिट माल और एब्सेंस सीजर्स। इट इन्वॉल्व लोकलाइज्ड कन्वर्जन्स ऑफ वॉलंटरी मसल and usually clonic in nature. It lasts for only few minutes. These are partial seizure with twitching of the fingers of one hand, face or one foot. Consciousness get impaired sometimes. तो ये कि इसमें उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ ऑफ टू टाइप्स, डायबिटीज़ मिलेटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मिलेटस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, वेयर एज डायबिटीज़ इंसिपिडस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो डायबिटीज़ जो शुगर जो है, जिसको शुगर बोलते हैं हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वो दो तरह की होती है। एक डायबिटीज़ मिलेटस होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। जो मिलेटस है वो इंसुलिन की एब्सेंस से हो जाती है, जो इंसिपिडस है वो ADH जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसकी वजह से हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? डायबिटीज मेलिटस इज ए कॉमन कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की
एब्सेंस की वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड विद नॉर्मल लिमिट्स बाय द इजलेट्स ऑफ लैंगरेन ऑफ पेनक्रियास। साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसोरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, कीटोनीमिया, कीटोयूरिया, पुअर वाउंड हीलिंग, मैक्सिमम सस्पेक्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड वेट लॉस हो जाता है आपका। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, आपके जो जख्म है वो जल्दी नहीं भरते हैं, जब भी कभी आपको चोट लगती है तो इन्फेक्शन से हो जाती है। द ब्लड ग्लूकोज रेज, जो आपका लेवल है ग्लूकोज का वो 600 से 800 mg हो जाता है। द ब्लड pH इज़ मार्कड रिड्यूस, आपकी ब्लड जो pH है वो कम हो जाता है। एक्यूट इंसुलिन लेवल में डेवलप। नॉक्टूरिया, ब्लड विजन हो जाती है, आंखों पर भी असर करती है। न्यूरोपैथी, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, नंबलेस in the feet are the symptoms observed in long term diabetes। हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर, इसको पेट के छाले भी बोल सकते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्लूड्स अल्सरेशन एनीवेयर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपकी जो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे भी छाले होना पेप्टिक अल्सर होता है। वेयर पार्शियल सेल्स सेक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्यूडिनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर आर द मेन टू टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ duodenal ulcer, it is a peptic ulcer in the wall of the duodenum extending into the muscularis mucosa. It is due to the excessive secretion of hydrochloric acid by the partial cell mass, excessive gastric release during meal. This occurs more frequently in patients with hyperthyroidism, alcoholic cirrhosis and rheumatoid arthritis। Sign and symptoms क्या है इसके? There is a steady burning pain in mild epigastric which is a relieving by injection of food or antacid। आपके अंदर जलन होनी पेट के अंदर, जो इंजेक्शन के बाद आपको एंटासिड दिया जाता है। The pain begins around 2 hours after a meal, खाना खाने के बाद आपको जलन होनी। एंड इट मे अवेकन द पेशेंट अराउंड मिडनाइट बट पेन इज एब्सेंट बिफोर ब्रेकफास्ट। आपको खाने से पहले कोई जलन ना होनी, आपको आधी रात के में आपकी नींद खुल जानी। पेशेंट गेन्स वेट ड्यू टू ईटिंग टू रिलीव द पेन्स। इन सम पेशेंट देयर इज नो In some patients there is no pain but show hemorrhage. There may be iron deficiency anemia. Gastric ulcer आ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का it is the ulcer in stomach. It occurs less frequently than duodenal ulcer. It is associated with lower rate of gastric acid secretion than that of duodenal ulcer. It is due to the breakdown of the mucosal barrier to back diffusion of acid secreted by the partial cell. Cigarette smoking and ingestion of salicylate increase the risk of developing gastric ulcer disease। तो जितने भी पर्सन वो सिगरेट करते हैं, स्मोकिंग, वो इसका मेन रीज़न होता है। साइन एंड सिम्टम गैस्ट्रिक पेन विच इज़ reduced by food. The pain is burning but less localized than duodenal ulcer. The pain is generally do not occur at night. Complications include peritonitis and pancreatitis. Thank you.